एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, सूरजकांता दुग्गल, शिवरंजन दुग्गल, शैली टक्कर, हिमांशु, आशा दुग्गल, चंद्रबाला दुग्गल, मुनीश दुग्गल, सिमी भंडारी, विवेक दुग्गल, शिल्पी मेहरा, प्रिया कपूर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲੇਸ ਪਲਾਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। श्री मदन गोपाल दुग्गल जी का जन्म पिता श्री राम मूर्ति दुग्गल होना दे कर माता श्रीमती राधा रानी होना दी कुखों 30 जून 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਦੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੰਬੇ ਮਿਲਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। बड़िया समझदा दातों मालिके बने फिरे के आना जिथे तेरे वडे वडे
इत्थि बैठ सदा किसी दे ना नहीं हो इत्थि बैठ सदा किसी दे ना नहीं हो बुराइयां दे पिछे फिरदा है तो गल नहीं करदा चंगी गुजरां वाले ने आनिता कुटनी जदों तेरी तां संगी माते नाले तो फेरे लेने कोड़ी चढ़े छे टंगी हुन दे आकड़े तुरने फिर जरा तू खंगी इत्थि बैठ सदा किसी दे ना नहीं हो ए नाने कदी मुकना नहीं हो ओए तंदे करना जे ए भी मिल जाए ओ भी मिल जाए करना मिटे बखेड़े मातिया कारे खाली कीते ते सोने कीते ओए मेरे बंदगी कर ले उस मालक दी अमली होने ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੂਰਜਕਾਂਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ੈਲੀ ਟੱਕਰ, ਸ਼ਿਵਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਜੇਸੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। कवि शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर की। प्राणी तेरा संसार दे विच जन्म होया है, तेरिया अखां विच आंसू है। संसार नूं तू छड्ड के जा रही है, फिर भी तेरिया अखां विच आंसू है, पर वो आंसू सानू दिखाई नहीं देते। दुग्गल साहब अज कथा का प्रसंग एक आंसुओं तो भी शुरू करना। मेरी एक गल याद रखना, भजन बोलना कोई औखा काम नहीं, भजन तुसी आप ही बोल लोगे।
गरुड़ पुराण पढ़ना कोई औखा नहीं। पंजवीं का बच्चा जिहड़ा है वो भी गरुड़ पुराण पढ़ लेगा। पर गरुड़ पुराण की अहमियत की है? किस तरह बालक आया, दुख सुख ग्रस्त आश्रम कितना, शरीर के विच बीमारियां आईयां, कित्थों प्राण निकले, कित्थे गया, फिर आन के जन्म लिया। मैं सारी गरुड़ पुराण की गाथा शास्त्रां के अनुसार चंद मिनटां विच करके दस दियां। दुग्गल साहब गरुड़ पुराण के विच शब्द आंदा है, एक गल्लां सुन पा रहे। गर्भ रोगे पुराण की शमशान। जेड़ा चार चीज़ों की अहमियत को समझ जाएगा ना, उनका लोक भी सुधर गया ते परलोक भी सुधर गया। गर्भ इसको 21वां नरक कहते हैं, माता की गर्भ, ये रोवर नरक है। बालक इस वक्त श्वास ले रहा है, परम पिता परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख को याद करता है, कहता कि हे प्रभु, इन्हां सजना वास्ते चंगे माड़े कर्म को कर्म कीते, दुख मैं कलिए पाना, अज मेरा सहारा नहीं कोई। मैनू ज्ञान अपान समान शक्ति भक्ति इतन तक के अपने दर्शन भी दे देते हैं। मैनू इस काल कोठड़ी के विचों छुटकारा कर दिया। दुग्गल साहब कई बार कहते हैं ना, भगवान धनवान भी सुनते या माड़े भी नहीं सुनते। बिल्कुल गलत। गरुड़ पुराण के पंडित जी ने तीसरे अध्याय में एक शब्द दसिया है। भगवान कहते हैं साडी अदालत दे विच चाहे कुछ सबल है, निर्मल है, दुखी है, मूर्ख है, पंडित है, गुरु है, विद्वान है, धनवान है, उथे तोड़ के गल करें। इथे झूठ भी बोलांगे, छल भी, कपट भी, पर भगवान कहते हैं साडी अदालत दे विच सिमरन दो चीजें, एक है चिंता, एक है सुचिंतन। गुरबाणी में रोज शब्द भी पढ़नी है ना, चिंता तां की कीजिए। गुरबाणी कहते काली चिंता, जेड़ा बनिया उन्हें टुटना, जेड़ा जमिया उसने मरना। इत्थे भी दुग्गल साहब गलत है। जन्म के नाल मरण नहीं, मरण के नाल जन्म दसिया गया है। गुरबाणी में शब्द भी आता है कि मरण लखावे मंडल निहार। पहले बंदे मरना तो सीख ले, तेनों की पता तू मां की गर्भ में मर जाना है, तेरा संसार में जन्म होना है या नहीं, किसी ने तो पता नहीं। पर मालूम जिस वक्त जन्म लेता है, ये दसो बच्चा होता क्यों? तुम मेरे बुजुर्ग बैठ के ज्ञानवान बैठ के साइंस भी कहते, डॉक्टर भी कहते। अगर बच्चा ना रोवे, असी कहने हो बीमार है। बालक इस वास्ते होता है, कहता कि हे प्रभु, जिस वो माया ने जंजाल में छड़ के गया सी, लिया के मैनू तू फिर इत्थे फसा दिता है। माया मरी ना मन। बेटा साहब, माया नहीं मरना, बंदे का मन कभी नहीं। नंबर 2, दुखी। असी दुग्गल साहब किसी दुखी बंदे को जानते हैं, वो की कहते हैं? कहता हे प्रभु, जे मेरे दुखों का निवारण कर देगा, मैं तेरे चरणों का सिमरन करा। जिस वक्त दुख दूर हो जाते हैं, मानव कहते रब है कितने? असी सूझवान बैठे हैं, परमात्मा अंदर ही बैठे, गुरुद्वारा गिरजाघर मसीतां बैठे। मां ने कहते हैं उत्थे मिलता है मन नूं सकून, मन नूं
शांति जिस वक्त एकाग्रत चित्त होके अपनी अंतरंग आत्मा नु उठा के 10वें द्वार ते ले जाएगा। 10वां द्वार किनु कहती है? मस्तक। इनकी कहती है लिव लगन श्रुति समृद्धि। जिस वक्त तेरी जीव परमात्मा के चरणों में लगे प्रभु तेरा ते तू प्रभु का हो जाए। जिस वक्त ठीक हो जाता है मैं रब को जानते ही। नंबर 3 शमशान। दुग्गल साहब जिस वक्त एक डेड बॉडी लैके असं शमशान के आने हैं अपने दिल के हाथ रख के दसो कितना सोच हो जाता। सोच में ज्ञान बंदे की जिंदगी सारी पर मेहनत करते रहे हैं, बच्चियां वास्ते करते रहे हैं, रिश्तेदार साथ संबंधी यार दोस्त मिलता रहे। जिंदगी एक मिनट लिया के इतने लगा तुम इतने सोच पंडित जी ने गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में शब्द तुहानू दस्या अंधे को दिखाओ दर्पण उसे क्या मालूम दिखा नहीं है या नहीं दिखा है। अरे सोए हुए को जगाओगे वह जाग जाएगा, जो अनसोया है उसे जगाने की कोशिश करोगे वह कभी नहीं जाएगा। उनको पता नहीं जागता। सूरज उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। बेटा तो जोत जगाई, जोत ने लाइट दे प्रकाश किया पर जोत के थले किए अंधेरा। असी ब्राह्मण लोग स्टेजा से रह के लोगों को ज्ञान देते हैं, कभी अपने अंदर भी झांकी मारी भला बुरे को देखकर चला बुरा न दिखा कोई। अपने में से देखे तो भाई हम सब बुरा कोई। महाराज कहते तो रब की पुलिस है तो लोगों के घोड़े इकट्ठे करने का ठेका लिया है, जो करेगा सो करेगा। नंबर 4 संग। आज गुरबानी शब्द लिखा कि संग सखा सब ताजियो कहो निकलियो साथ कहो नानक इस विपत में एक रखना। सारा फलादेश मैं मदन गोपाल जी के चरणों में अर्पण करना और परम पिता परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख की प्रार्थना करना। दुग्गल परिवार, टक्कर परिवार, चड्डा परिवार, सारे परिवार खुशियां प्रदान करन, मंगल बनिया रहे। हाँ मैं बेटा 1 मिनट वास्ते गल करा तो बात दान देना दे मेरा कोई मतलब नहीं। अपनी बहन और भनभैये का सम्मान करें। इस शास्त्र भी कहता है जिस घर के बेटी और दामाद का सम्मान होएगा वो घर एक स्वर्ग बन जाएगा। और अपनी मां की इन्नी सेवा करी उन्होंने महसूस भी ना होवे कि मेरा साईं है या चला गया है। वो ना होए जिन्ना दे पिछू होए। रब कुश्ती जोड़ी बड़ी लायक और समझदार है। बाकी नरेश जगदीश राकेश जी और चड्डा परिवार, नानक का दास का पीर का सौरा परिवार आज मिलके अरदास करिए, प्रार्थना करिए। हे प्रभु मदन गोपाल जी गोपाल का सिमरन करते हुए कृष्ण भगवान के चरणों में निवास स्थान कर चुके हैं। और आज की सारी सत्संग का फलादेश उन्होंने अर्पण मैं बलभद्र जी को कहांगा। इन्होंने पहले भी किया कि समय की कदर, वक्त की कदर करोगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। अगर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। अगली कार्रवाई दुग्गल साहब जिस तरह है तुम बड़े प्रेम के नाम शुरू करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, आज हम जिस पवित्र दिव्यंगत आत्मा को अपने अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस पैलेस के अंदर विराजमान है,
प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए अभी ध्यान किया कि शांताकारम भुजगशैलम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकीकनाथम। जो सारे चराचर जगत का पालनहार उस परम पिता के चरणों में बैठ करके हम सब ने सर्वप्रथम वह अमृतवाणी जिसका पाठ किया, श्री प्रेम कृष्ण जी सूत बता रहे थे कि अमृतवाणी में 330 बार प्रभु श्री राम जी का नाम आया। तो आप देखेंगे कि अभी तक दुग्गल साहब का इस शहर के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ इतना स्नेह था कि ठीक 1:30 बजे से यह पाठ प्रारंभ हुआ था और अभी तक आप सभी पुष्पांजलि अर्पित करने की कतार लंबी लगी हुई है। तो अमृतवाणी का पाठ का फल भी श्री मदन गोपाल दुग्गल जी को प्राप्त हुआ। सम्माननीय गुलशन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन से, सभी औपदैहिक क्रिया गरुड़ पुराण के माध्यम से और गीता जी के माध्यम से आप सबको श्रवण करवाया। यह दुग्गल परिवार जितने भी लोग मेरे सम्मुख विराजमान हैं, यह परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जैसे ही लाला राममूर्ति दुग्गल जी का नाम और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल दुग्गल जी, जिनका देहांत 20 जुलाई को वह पावन तिथि एकादशी के दिन उन्होंने अपने शरीर को का परित्याग किया और उनका जीवन, उनके बारे में तो बात करना थोड़ा बनता है। गरुड़ पुराण के माध्यम से शास्त्रों का जितना भी फल है वह फल तो सभी को प्राप्त होता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। मदन गोपाल दुग्गल जी ये वही पैलेस है जिन्होंने अपने मन के अरमानों से इसका निर्माण किया, इसका मुहूर्त किया। शहर के अंदर उनका जीवन हमारी अति प्राचीन 100 साल से भी ऊपर श्री शंकर पर्वत मठ हदियाबाद पाठशाला का भी उन्होंने वहाँ का भी प्रधान सेवक के रूप में सेवा की। जठेरे दुग्गलों के भी वह प्रधान रहे, तो सम्मान पूर्वक जीवन जिया। तो शास्त्रों में कहा जस्य कीर्ति सह जीवती, जिसकी कीर्ति जीवित अवस्था में भी हो और मरणोपरांत भी जिसका गुण गाया जाए तो वह व्यक्ति सदैव जो है अमृत को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति 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 ओम। सबने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 3 बार। यही आपकी ओर से श्री मदन गोपाल जी को आपकी द्वारा श्रद्धांजलि होगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय मदन गोपाल जी दुग्गल सन छोटी उम्र पिछोड़ा दे के चले गए। प्रभु का हुक्म मंगना पैदा है, इतने किसी की बस नहीं है। एक परिवार लाला भगत कल्याणीलाल जी दुग्गल जी का परिवार, जिन्हों के 4 पुत्र राममूर्ति दुग्गल, श्री प्राणनाथ जी दुग्गल, श्री मोहनलाल जी दुग्गल, कृष्णलाल जी दुग्गल, जिन्हों के 4 बेटे अपने अपने कामों में
समाज के अनेक सेवा करके दिखाई है उन्होंने लोगों ने। प्राणनाथ जी को शक्ति सी जो मुकदमा लेके आए, पुलिस ने इन्होंने फड़ लिया, रस्ते में जा रहे थे, पुलिस ने फड़ लिया। इतना जन समर्थन लोगों ने उस वे मिले बहुजा तो यहो जी कुर्बानी उन्होंने की। ये सारा ही परिवार RSS जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुड़ तो जुड़िया जाती साडी समाज की पार्टी बनी है। और इन्होंने नाल ही साडे इसे परिवार के गए तो कभी साडी पार्टी के जिला प्रधान हैं। तो मैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, इन्होंने परिवार के चार भरा गए दुग्गल मदन गोपाल दुग्गल जो सानू पिछोड़ा दे के चले गए, नरेश सिंह दुग्गल, जगदीश सिंह दुग्गल, सारे भरा समाज की सेवा लिए हर वे कर रहे हैं, हूँ कर रहे हैं। शिवरंजन दुग्गल मदन जी का बेटा, उन्होंने पत्नी बिंदिया दुग्गल, हिमांशु दुग्गल, उन्होंने पत्नी कनका, बेटी शैली दुग्गल, जवाई अमन टक्कर, जिन्होंने अंतर सेवा की है। माता शक्ति मेरे वीर, अज बहुत दुख की घड़ी दे विच असीं सारे इकट्ठ होए हाँ। असीं वो परिवार दे विच हाँ जिन्हां दी एक देन है। RSS मैं छोटे हुंदे ही बाऊ जी राममूर्ति दुग्गल जी को दुकान से भी जाता रहा, बड़ा कुछ सीखिया इस परिवार तो। जिन्नी देन इस परिवार की आ, मेरा ख्याल होर किसी देन नहीं। RSS जनसंघ जिदा बलवंतर जी ने दसिया, पुराने संघ के हरियावाद दे विच, अज हरियावाद दे विच जे ना है दुग्गल परिवार, शुरू तो ही दुग्गल परिवार उत्थों जितदा आया, क्योंकि दुग्गल ते चड्ढे परिवार ही उत्थे दो इदां दे आ जिहड़े इन्नी देन है। अज दुग्गल परिवार हरियावाद किते भी कोई खड़ जाए तो दुग्गल परिवार उत्थों जितदा। मैं अज की शोक घड़ी दे विच माननीय सोमकार कैन जी भी आए, मैडम नीता जी भी आया, होर वख-वख पार्टियां दे सारे आए। माता शक्ति मेरे वीर, मैं ये दसना चाहना मदन लाल जी जिहड़े वख-वख अहुदियां दे, मेरा ख्याल 1 दर्जन अहुदियां दे उत्ते रह चुके हैं। अजकल तो किसी को जिम्मेवारी मिलनी होवे तो एक बारी ला के दूई बारी बदलते आ। ये वो परिवार आ जिन्होंने वड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां मिलियां और देन है इस परिवार की। मैं इस परिवार तो बहुत कुछ सीखिया। अज की शोक सभा के घड़ी विच मैं श्रद्धा के फुल भेंट करदा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति शांति। ब्राह्मण सभा मंडल मिनिस्टर फगवाड़ा मनीष कुराका जी, कौंसलर फगवाड़ा। तो मैं हूँ कहांगा मोहन लाल जी सेठी 1 मिनट लिए साढ़े भारतीय जनता पार्टी के जिला कपूरथला प्रभारी और पंजाब के सीनियर आगू है मोहन लाल जी सेठी, वो भी 1 मिनट लिए अपने श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट करेंगे। विराजमान परम पूजनीय पंडित जी महाराज, बहुत दुख की घड़ी है। साडे वीर मदन गोपाल दुग्गल जी जो कि शारीरिक साथ साडा छड्ड गए ने, दुख उस वक्त होर ज़्यादा बढ़ जाता है जदों व्यक्ति धर्म के नाल धार्मिक कामां समाज सेवा के अंदर लग्या होवे और जिसते इच्छा ही होए कि मैं समाज लिए जीना, समाज लिए काम करना है, और इस सारे परिवार को ऐसी रास्ता दिता होया, मैं समझदा साडा दुख बहुत है। और इस घड़ी के अंदर भावें मैं बाहरों आंदा जिला प्रधान साडे राकेश दुग्गल जी ने, मेरा उन्होंने नाल परिचय अक्सर मीटिंगों के अंदर रहिंदा है क्योंकि मैं पटवारी हाँ भारतीय जनता पार्टी कपूरथले का। तो मैं एक चीज़ देखता सारे परिवार के अंदर जिथे भावें साडे RS का काम होए, भावें भारतीय जनता पार्टी का काम होए, भावें समाज की किसी तरह की सेवा का काम होए, मैं देख रहा सी करीब 1.5 घंटे तो मैं इत्थे बैठा जो एक शुरुआत तो लैके बाद तक मैं देख रहा सी। असीं कहते होंगे हाँ जे किसी बाग की फुलवाड़ी में देख लिया जाए, कोई बहुत सुंदर बगीचा होए, बगीचे दे विच बहुत सुंदर फल लगे हों, फुल लगे हों, तो उत्थों अंदाजा लग जाता है कि इस बाग का माली
कितना मेहनत कश होगा। साडे मदन गोपाल दुग्गल जी उन्होंने इलाके के अंदर, मैं तो कहता ना इलाके की महान शख्सियत है, आज साडे विच नहीं रहे। फुलवाड़ी को देख के लगता सी कि लोगों का आना 1.5 घंटा लाइन ना टुटना, भावें मेरी भैन भावें मेरा वीर कितना इस परिवार के नाल वो जुड़े हुए हैं। सो मैं इस दुख की घड़ी के समय की इजाजत नहीं दिता। साढ़े मंत्री जी भी कैसा बैठे ने, मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश वालों माननीय श्री शर्मा जी वालों श्रद्धा के फुल अर्पित करदा, ईश्वर अगे अरदास करते हैं कि साड़ी पिछड़ी आत्मा अपने चरणों के विच स्थान दें और परिवार में, क्योंकि परिवार देखो पता उसनों चलता है जिस बहन के सिर तो सुहाग चला जाता है, जिस बच्चों के सिर तो बाप का छाया चला जाता है, जिन्होंने बच्चों ने सेवा की है। सो मैं ईश्वर अगे ही अरदास करदा इस दुखी परिवार में सदमा सहन की शक्ति देवे और अपने चरणों उस दुखी पिछड़ी आत्मा को स्थान देवे। धन्यवाद। सोमवार दिन तो पहला एक गल दसना जरूरी समझदा कि जितने भी धार्मिक काम मदन गोपाल जी ने किए हंडियाबाद फगवाड़े के पैसे इकट्ठे नहीं किए, पैसे कोलों लाए। चाहे रामलीला कमेटियां, चाहे धर्मशाला दुगला, चाहे जठेरे दुगला, चाहे फिर कोई लालच नहीं, कोई हंकार नहीं। ऐसा नेक इंसान दुनिया में पैदा होना बड़ा मुश्किल होता। चलो प्रभु की कृपा इन्ना टाइम का लिखा सी, पर अभी प्रभु परमात्मा के चरणों की अरदास करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों के स्थान दें, परिवार को ये जी घाट है पूरी करने की शक्ति दें। मैं अंत में अपने भारत सरकार के बने थे उद्योग मंत्री श्रीमान सोम प्रकाश जी को बेनती करांगा तो अपने श्रद्धा स्वरूप पेश कर श्री सोम प्रकाश जी। एक हयाती जग ना कोई दिल रहा, जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए। अज की इस शोक सभा बैठे मातृ शक्ति वीरों भैनों, अज बड़ी दुख की घड़ी में असी इकट्ठे हुए हैं। मदन जी दुग्गल जिहड़े एक अनमोल हीरा सी, जिन्हों की समाज लिए बहुत बड़ी देन, अज इन्हों के समाज ने इस परिवार की पीढ़ियां तो देन है। बहुत बड़ा नाम इस परिवार का और बहुत बड़ा घाटा शहर में समाज में सानू विशेष तौर पर सानू पिया, जिन्हों के नाल हमेशा चलते सी और जिन्हों के असी हमेशा भरोसा करते सी। मैनू पता है जिस दिन इस बीमारी बारे डिटेक्ट होया उनकी बिलवार बहुत तकड़ी सी। वो कहते मैंने कुछ नहीं होया, मैं ठीक हो जाना। आखिरी हाथ टाइम तक उन्होंने यह लगता सी कि मैंने कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाना, बिल्कुल ठीक ठाक। बिलवार बहुत स्ट्रॉन्ग सी, परंतु प्रभु का भाना है, जो आया सो चल सी, सबको आई वारी, अपनी वारी ना जाना। मरण लिखाए मंडल में आए, मरण का दिल लिखा के दुनिया जो आदमी आता है तो फिर जो तो उस दिन से जाना तय है। साडा प्यार है, साडा दिल होंदा है, साडा रिश्ता है, इस करके सानू तकलीफ होती है, सानू दर्द होता है, सानू दुख होता है। वही दुख असी अज इत्थे साझा करके इकट्ठे होए। राकेश दुग्गल जी साडे जिला प्रधान ने, बहुत वधिया इंसान, बड़ी जुरत वाले, बड़ी हिम्मत वाले और लंबे समय तो मैं तो जब तो इतने आया इस परिवार के बहुत नेड़ता की सांझ है। जिवें बलभद्र सिंह दुग्गल जी ने दस्सिया कि वो हमेशा ही हर काम में अगे बढ़ के किसी तो पैसे इकट्ठे करके लोड़ नहीं आप ही खर्च कर लेंगे। परमात्मा के ऐसे समय असी जिन्ना मर्जी रो लीए करा लीए, कुछ कर नहीं सकते। प्रभु के भाणे के अगे सिर झुकाना पैंदा है, सिर नीवा करना पैंदा है। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ,
ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੁੱਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੁੱਗਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਕੋਖੋਂ 30 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 1977 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸ਼ੈਲੀ, 2 ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੁੱਗਲ। 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਗਦੰਬੇ ਮਿਲ ਸਟੋਰ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਜੇਸੀ ਰਿਸੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਠੇਰੇ ਦੁੱਗਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੁੱਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਨਾਥ ਪਰਬਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਹਰੀਆਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਨਾਥ ਪਰਬਤ ਮੱਠ, ਉੱਥੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਛਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।